Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we are covering up important topics from 20th April. So first, ये topic हम cover कर चुके हैं that the FDI around $2 to $3 billion from Tesla in India, especially obviously that is going to be in the electric vehicles industry. So India में जो भी leading player है electric vehicles में that is Tata Motors, and we are seeing key developments are happening, but the major challenge is the high cost of the vehicle. So with the FDI of Tesla, we'll be seeing कि जो उनकी low priced car है, they can be introduced, they can be manufactured in India, तो cost और competitive हो सकती है. Apart from this, और कुछ again structural changes उनको भी करने पड़ेंगे in terms of कि how the cars, whether they are adaptable to the Indian climate, because again subtropical region में the geographical location of India, तो hot and humid climate से कैसे the electric vehicles they can adapt in a much better manner. And again, जैसे speed breakers and bad roads, तो adaptability to all these conditions that is important. India की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो एक मेजर चेंज ये हुआ है कि पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इट यूज्ड टू बी 100%, सो दैट हैज बीन लोवर्ड टू 15%. सो दिस कम्स अंडर द टैरिफ बैरियर्स. तो टैरिफ बैरियर एक तरीके से अब इसको कम कर दिया है, तो इट बिकम्स की टैरिफ बैरियर कैसे हम रिमूव या कम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस. सो इट वाज, अगर हम जाए बाय द वैल्यू ऑफ द कार, तो the car models costing over $35,000, if it is manufactured, promise to invest $500 million in setting up a local factory. तो वहां पे we are seeing कि import duty has been reduced to 15%. So this is the condition that has been laid down. So $35,000, close to rupees 35 lakhs is there, and this is under Ministry of Heavy Industries. So this is important fact. इसके अलावा like यहाँ पे हम कार मैन्युफैक्चरिंग की एक बात कर रहे हैं. Apart from this, जो हम बाकी components की बात करते हैं like batteries, so in terms of lithium ion batteries, तो वहाँ पे भी we are focusing upon make in India and आत्मनिर्भरता, and secondly in the semiconductor chips also, जो faber units की हम बात करते हैं, in designing also and in manufacturing also, because there we are seeing the monopoly of China is there. So in this case, we are seeing कि joint ventures they are being promoted, या जब हम semiconductor chip facilities setting up in India की बात करते हैं, तो example includes Micron is one of the companies, which is again a US based company, semiconductor company. So this is there, and इसके अलावा we are seeing कि एक जो टारगेट था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2050 इंडिया में दे शुड रीच 30%, ये गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था. बट अगेन गिवन जो करंट नंबर्स है, हाउ थिंग्स आर चेंजिंग एट दी टुडेज पेस, तो अगर हम उसको फोरकास्ट करें बाय 2030, तो सिर्फ 5% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम अचीव कर पाएंगे बाय 2030. तो उसको हम कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, दैट कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. बाकी हम challenges डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. एंड यहाँ पे एक और फैक्ट है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड अमेंडेड रूल्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू ऑपरेशनलाइज इट्स डिसीजन टू अलाउ 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर. तो यहाँ स्पेस एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, विच इज अगेन ओन्ड बाय इलॉन मस्क. So space sector and electric vehicles. Here we are seeing again a joint venture in terms of जो बात करें एयर टैक्सी ट्रायल्स इन इंडिया, तो एयर टैक्सीज दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया after the successful trials that would be carried out. So this is a joint venture between Archer, जो एक US कंपनी है, and Interglobe. एंड यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि कितना इंडिया के लिए कितना डिजायरेबल है या कितना सक्सेसफुल हो सकता है. चैलेंजेस क्या आएंगे, फर्स्टली इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइक जो हेलीकॉप्टर्स के लिए अभी हम करंटली लाइक हेलीपैड्स यूज करते हैं, बट उनका नंबर्स इंक्रीज हमें करना पड़ेगा. एंड कितना ये फार रीचिंग एरियाज में हमें हेल्प कर पाएगा, तो वहां तक क्या ये हमें बेनिफिट्स डिलीवर कर सकता है, नहीं कर सकता है, कॉस्ट क्या रहेगी ऑफ एयर ट्रैवल, एंड
ये हम बोल सकते हैं कि दिस कैन बी वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स टू द एयर ट्रैवल। तो वहां पे भी इन एयर ट्रैवल जो फेयर्स हम बोलते हैं, अभी मोनोपोली एग्जिस्ट करती है, ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है, तो प्राइसेस कैन बिकम मच मोर कॉम्पिटिटिव इन दिस सेंस। सो दिस कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस एज वेल। और एंड मानसी इसमें लाइक ट्रेन्ड पायलट्स की बात करते तो अभी करंटली हम शॉर्टेज देख रहे हैं, तो वो हम कैसे मीटअप कर पाएंगे? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल सकते हैं कि जो एयर ट्रैवल है, दिस मोड ऑफ एयर ट्रैवल कैन बी यूज्ड इन द हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि हाँ। एम्बुलेंस का खतरा रहता है कि एम्बुलेंस पार नहीं हो पाता है ट्रैफिक में। तो rather than focusing on उड़ान स्कीम या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, हेल्थ इमरजेंसी, लॉजिस्टिक, आर्मी या फिर जो डीप इंटीरियर्स जो इंडिया के अंदर में वहां पर पहुंचाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, उसके लिए यूज कर सकते हैं। हम्म। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ज़रूरत होता है समय से, तो दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। Now disinflation gains have been achieved। जो लास्ट 2 years में डिसइंफ्लेशन में गेन्स हमें मिले हैं, अब उनको प्रिजर्व करना भी इम्पोर्टेंट है। सो डिसइंफ्लेशन फर्स्टली स्लोइंग ऑफ द डिफाइंड बाय द इन्फ्लेशन है ना, मीनिंग। स्लोइंग ऑफ द इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन हो रहा है बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड। सो ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डीफ्लेशन, एंड डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एट अ लोअर रेट। तो ये एक सिंपल इसका मीनिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात हो रही है, तो वी नो कि इट इज अ 6 मेंबर्ड कमिटी। 3 आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड 3 फ्रॉम आरबीआई। एंड जो बाकी रिस्क है, वी आर सीइंग कि फूड इन्फ्लेशन से और रिस्क हो सकते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट जो है दैट इज सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और टारगेट को मीट करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या स्टांस होना चाहिए या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए इन द रेपो रेट, दैट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एंड द करंट टारगेट इज 4%, एंड द बैंड इज ±2%। तो 2% से 6% के बैंड में इन्फ्लेशन शुड बी देयर, एंड एग्जैक्ट इज 4%। And even in core inflation, we are seeing key core inflation is also reducing. It is also, you can say, moving towards the target level. And apart from this, we can also say कि जो रेपो रेट है, जो इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, ये एक चैलेंज हमें देखने को मिला कि देर इज अ टाइम लैग विच इज बीन रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आरबीआई डिसाइड करता है कि रेपो रेट को हम इंक्रीज करेंगे, तो कितना टाइम लगता है बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने में, उसको हम टाइम लैग बोलते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पे ऑब्वियसली वो इमीडिएट बेसिस पे चेंज नहीं हो सकते हैं, बट जो टाइम लैग है वो कम से कम होना चाहिए। दैट कैन, वी कैन से कि इट कैन हेल्प इन एक्चुअलाइजिंग द बेनिफिट्स, या जो इंटेंशन है बिहाइंड चेंजिंग द रेपो रेट। So global food prices, global level पे भी food prices are, they are a challenge, and India maybe we are seeing food inflation still remains a challenge, especially because of the supply side shocks. So here we can talk about the supply chain, the importance and the smooth working of supply chain becomes important, not just in the industrial sector, but even in terms of the food and agriculture sector also. So how we can manage that volatility that we are seeing in food prices. तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, रिसेंटली वी सॉ कि अगेन इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। तो दिस इज द नेम ऑफ द सिटी, इस्फाहान, इसकी लोकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे दिस इज द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ ईरान, एंड इट होस्ट अ नंबर ऑफ Iranian military and nuclear sites also. So this is the, and Tabriz is also, यहाँ पे small drones were shot down near this town. So we can remember the name of these towns also जो जहाँ पे अटैक किया गया है, they are in Iran. एंड बाकी यहाँ पे यू कैन सी दिस इज इजराइल, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज इजिप्ट, जॉर्डन, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, दिस इज टर्की, इराक, ईरान, देन वी हैव पाकिस्तान दिस साइड। एंड यहाँ पे वी कैन सी दिस इज कुवैत इज लोकेटेड ओवर हियर, एंड ये पर्शियन गल्फ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज साइप्रस,
and this is the Caspian Sea. And यहाँ पे टर्की के ऊपर एग्जैक्ट है ब्लैक सी, और ये आप तो देख इसमें क्विज कैनाल है यहाँ पे, और दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। इधर इलियत पोर्ट जो है इजराइल का, वो यहीं लोकेटेड है एग्जैक्टली। तो इसमें ऐड कर सकते कि ईरान में प्रोबेबल न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे, ऐसे पीटी में एक क्वेश्चन। यहाँ इस्फाहान सिटी में। हाँ, तो इस जो है सामने में नाम जो लिखा है ये भी वही है, इस्फहान, फिर नानतेज, ये पता होगा, फोडो, अरक और बुशेर। मैं डाल देता हूँ उसमें। हाँ ठीक है। So this is again one of the examples of again joint venture, Amara Raja. So solar power project में we are seeing investments. They've received this project from on the part of Greenco. The renewable energy project will be set up in Andhra Pradesh, Kurnool district में. So it is going to be one of its largest project. That is why it is in news. DRL, Dr. Reddy's Laboratories, they unveiled digital care plan for irritable bowel syndrome. So irritable bowel syndrome is a gastrointestinal disorder जहाँ पे we face abdominal pain, bloating and altered bowel habits. So इसके अलावा यहाँ पे जो care information है, not just in this types of disease, but बाकी cases में भी care economy की जब हम बात करते हैं, तो जो लैबोरेटरीज, प्राइवेट लैबोरेटरीज इंडिया में फंक्शन कर रही है, दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल की प्रॉपर जो केयर प्लान है, क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। हाउस होल्ड केयर की जब हम बात करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स एंड डिजीजेस। सो इसमें हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज करने में हेल्प ये फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक कौन सी डाइट फॉलो की जानी चाहिए, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकल वेलनेस के लिए व्हाट स्टेप्स वुड बी हेल्पफुल। So this can help in dealing the disease burden in India. Talking about BrahMos missiles, so कल भी हमने बात करी थी कि India delivers the first batch of the BrahMos supersonic missiles to Philippines. So BrahMos missiles is a joint venture between DRDO and Russia. And यहाँ पे mention है supersonic. तो इसकी जो speed है that is 3 Mach, M-A-C-H. 3 Mach means it travels 3 times the speed of the sound. So that is why 3 Mach. And supersonic cruise missile है. तो trajectory जैसे ballistic and cruise होती है, तो this is cruise. And a joint venture, this is there. तो यहाँ पे ये है, ये जो names हैं, these are derived from the two rivers, Brahmaputra and Moskva rivers. So Moskva river in Russia, and it can be launched from like land से भी कर सकते हैं, sea से भी कर सकते हैं, air से भी launch की जा सकती है. And it also functions on the principle of fire and forget. So this is also associated with BrahMos missile. कि आप फायर कर दो and then you don't have to worry about जो exact target होगा वहीं जाके hit करेगी. And you can check कि अभी इसकी range क्या है, औशिक, if you remember. पहले MTCR का इंडिया पार्ट नहीं था, तो 300 किलोमीटर के नीचे होंगे अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 2016 में इंडिया joined MTCR, Missile Technology Control Regime, 2016. 300 किलोमीटर के ऊपर, लेकिन आई थिंक वो उससे ऊपर देंगे नहीं इसमें फिलीपींस जो को। आप एयर से फायर कर सकते हो उसकी रेंज अलग होती है, जो आप मिसाइल जो सी से करते हो, सबमरीन से कर सकते हो, वो रेंज वेरी करती है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्रूज मिसाइल है, ये पूछा 23 ने पूछा था। हाँ, ये पूछा था। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के आप एग्जांपल दे सकते हो, अभी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स है? ICBM अग्नि, क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटर इन द फूड सेक्टर, सो सेंटर आस्क्ड इट टू इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट नेस्ले। तो यहाँ पे जो केस है, जो बेबी फूड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल सेरेलैक, तो उसमें इंडिया में वी सी की जो
again, this is an example of processed food. So there is high added sugar per serving, around 2.7 grams. And अगर हम बात करते हैं baby foods की बाकी advanced countries में like Switzerland, France, Germany, तो there is no amount of added sugar. तो अगर आप again baby को ही added sugar, added preservatives के ऊपर अगर they will be consuming that, तो definitely उनकी जो immunity है, जो आने वाले टाइम में जो हेल्थ है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो हाई शुगर कंटेंट, यहाँ पे सिर्फ बेबी फूड की बात हो रही है, बट इवन जो हम भी कंज्यूम करते हैं प्रोसेस फूड, उसमें भी चाहे आप सॉल्ट कंटेंट या सोडियम कंटेंट की बात करो, सैचुरेटेड फैट लेवल्स की बात करो, या इवन शुगर की बात करो, तो वो जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं दे आर सरपासिंग दैट लेवल। सो इवन it needs to be looked into that also, जैसे हम बोलते हैं high sugar, high salt and high fat content foods. So this is the matter. And WHO, World Health Organization, definitely they also warned against the presence of high sugar content in the baby food products. So regulation of these food processing industries is extremely important when we're talking about dealing with the non-communicable diseases like diabetes, and it impacts our cardiovascular health also, or we talk about dealing with obesity. So Ministry of Consumer Affairs is looking into this. And talking about this festival, so this is celebrated, the Thrissur Puram festival. It is an iconic festival celebrated in the Kerala. You can see this is the Vadakku Nathan temple. So if you can provide more information about this temple. हाँ Okay, so यहाँ पे we have discovered fossils of huge prehistoric snakes in Kutch mine. So the name is this Vasuki indicus. So this is a fossil of snake species, and this is the species to which it belongs. So ये हमें और help कर सकता है कि उस time period पे, as यहाँ पे mentioned भी है कि उस time period पे Earth look quite different from today, because Africa, India or South America, they were not separated into different continents या different countries also. तो उस टाइम पे क्या क्लाइमेट था, what factors, what were the causative factors because of behind the high temperature and the tropical climate, उसको हम और study कर सकते हैं through this fossil that has been discovered, and इसका size is close to modern bus, modern day school bus जो आज के टाइम में, तो so large is the size of this reptile and snake, and it belongs to the Middle Eocene period. So these are few facts about this. So this is the name of the mine, Panondro lignite mine. Lignite is a type of coal. ठीक है, वहाँ से पिछले वाला में आ दो एक बार। In the popular lore, it was established by Lord Parshurama. आइकॉनिक टेम्पल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया ने भेजा था नाम, अभी तक प्रोबेबल लिस्ट में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में इट इज कंजर्व्ड। दूसरा, इट इज मेन डेटी इसमें सभी है, इसमें विष्णु भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, गणेश भी है, सब कुछ। तो आइकॉनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल, दैट इज। you can see this. Okay, reviving the cycle, center has been meeting capital expenditure targets. Private sector and states, they've been patchy. तो अगर पहले हम different economic theories की बात करते हैं which can help in GS paper या PT में भी now we are seeing कि questions पूछे जा रहे हैं। तो firstly we are seeing कि जो कीन्जियन थ्योरी है वो सपोर्ट करती है, या दे बिलीव कि फिस्कल पॉलिसी कंपेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉनेटरिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उनका मानना ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा हेल्प कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रिवाइविंग द इकोनॉमी, और व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स एंड इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। तो कीन्जियंस दे सपोर्ट द फिस्कल पॉलिसी, सो दे बिलीव इन कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए। अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, एंड
सेकेंडली वी कैन टॉक अबाउट कि जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ये एक टर्म है, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस वर्सेस द कीन्जियंस जब हम बात करते हैं डेट फाइनेंसिंग की, तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको आप दो तरीके से कम कर सकते हो। एक है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है इन द मार्केट सो एज टू रेज द फंड्स, एंड वो जो फंड्स रेज करते हैं उसको एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट। अगेन वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का एग्जाम्पल है। उसके थ्रू इट इज बिलीव्ड, कीन्सन का मानना ये है कि जो डेट फाइनेंसिंग है उसके थ्रू इकोनॉमी को हम रिवाइव कर सकते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट पैसा मार्केट से उठाएगी उसको वो एक्सपेंडिचर स्पेंड करेगी एंड उसकी वजह से इनकम इंक्रीज हो सकती है लोगों की और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट होगी, तो एक्सपेंशनरी इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। इनकम इंक्रीज होगी तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, स्पेसिफिकली टैक्स रेवेन्यू, वो इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी थ्रू हम फिस्कल डेफिसिट को और कम और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कीन्जियंस का मानना है रिगार्डिंग द डेट फाइनेंसिंग। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है डेट फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने का, वो बाय प्रिंटिंग मोर मनी, बट उसके अपने वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब जब हम रिकार्डियन इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस का कहना ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं, वी लाइक कॉमन पीपल है, वो इतने लाइक दे आर रैशनल इन टर्म्स ऑफ कि अगर गवर्नमेंट आज के टाइम में मार्केट से डेट फाइनेंसिंग कर रही है, उस पॉलिसीज को अडेयर कर रही है, तो फ्यूचर में उस डेट को रीपे भी करना पड़ेगा क्योंकि वो मार्केट से बोरो की गई है। तो उसकी वजह से जो फ्यूचर में टैक्स रेट है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर्स आज के टाइम में अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से जो डेट फाइनेंसिंग टैक्टिक्स है, जो मेथड है, उसकी वजह से इकोनॉमी में हमें एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो कीन्जियन का मानना था कि एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहता है कि एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ डेट फाइनेंसिंग। तो ये सिंपल चीज है। एंड यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हमें देखने को मिल रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट जो है या जो एलोकेशन है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लोज टू रुपीज 11 लाख करोड़, दैट इज बीइंग लाइक इंक्रीज ग्रेजुअली, बट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। एंड स्टेट्स में भी वी आर जो फाइनेंशियल चैलेंज है, फाइनेंशियल फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस। तो एक और जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट की हम बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा रेज करेगी, ज्यादा बोरो करेगी मार्केट में, तो जो अमाउंट ऑफ मनी या जो फाइनेंस बचेगा मार्केट में वो कम होगा, उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हुई, इसकी वजह से अगेन प्राइवेट सेक्टर क्यों बोरो करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाई रेट पे, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो व्हेन देन वी सी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी। So that can be also one of the reasons why we are seeing private sectors less participation as of now. Apart from this, एक important चीज जो यहाँ लिखी है कि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक हो गया क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सेकेंडली वी आर सीइंग एक्सेस कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, जो हम बोल सकते हैं कि इन्वेंट्रीज हैं वहां पे दे आर लाइक बिल्डअप। अभी जो जितना हम गुड्स प्रोड्यूस कर चुके हैं, अभी स्टॉक बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री स्टॉक। सो उसके पीछे क्या रीजंस है कि एक्सेस कैपेसिटी अभी क्यों इतना ज्यादा है। फर्स्टली वी आर सीइंग कि प्रोडक्टिव जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रही है। तो परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रही तो लोग ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, तो इसलिए इन्वेंट्रीज ज्यादा डिक्लाइन नहीं हो रही है। तो इसलिए एक ये है रीजन एक्सेस कैपेसिटी के पीछे। सेकेंडली वी आर सीइंग कि जो पेंटअप डिमांड था आफ्टर द कोविड-19 पीरियड, वो अब कम हो गई है। कम हो गई मतलब पेंटअप डिमांड वो डिमांड है जो कोविड-19 टाइम पीरियड के दौरान नहीं मीट अप हो रही थी। तो वंस वी सी कि इकोनॉमी स्टार्टेड रिकवरिंग, तो पेंट अप डिमांड सडनली उस टाइम पे बहुत ज्यादा हमें लाइक सिंपल टर्म्स एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब वो पेंट अप डिमांड वाला फैक्टर भी कम हो गया, तो इसकी वजह से भी इन्वेंट्रीज दे आर नॉट डिक्लाइनिंग, या वो सेल्स कम हो रही है कंपैरेटिवली। एंड जो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई वो कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक सेक्टर में हुई है, जहाँ पे वी आर सीइंग की वेजेस और जो इनकम है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। थर्डली वी आर सीइंग की हाई इन्फ्लेशन इज अनदर चैलेंज, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है, या जो परचेजिंग पावर है दैट इज declined because of high inflation. So इसकी वजह से we are seeing excess capacity, and that is why private sector is not coming forward with higher investments and private we can say expenditure. So ये कुछ factors यहाँ पे हैं। तो इसमें हमने काफी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया, और बाकी ठीक है यहाँ पे जो कॉमन एरियाज है
डेट इशुएंसेस, ये डेट इशुएंसेस वही है जो मैंने अभी मेंशन किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू की जाती है एंड गवर्नमेंट डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा रेज करती है. सो दीज वर एट अ हाई ऑफ रुपीज 11 लाख करोड़. सो दो थ्योरीज की हमने बात करी, कीन्सियन थ्योरी एंड देन रिकार्डियन इक्विवेलेंस, एंड वी टॉक्ड अबाउट क्राउडिंग आउट इम्पैक्ट और एक्सेस कैपेसिटी की हमने बात की. So here center releases curriculum framework for the Anganwadis. So this has been released by Ministry of Women and Child Development. The name is National Curriculum for the Early Childhood Care and Education 2024. So the title is Adarshila. So again, this is on the lines of National Education Policy 2020. तो कल भी जैसे हम इस चैलेंज के हमने डेटा की बात करी थी कि close to 27% of children जो basic numeracy skills हैं या फिर reading and writing वो नहीं कर पाते according to the ASER survey, annual status of education report, which is released by the Pratham survey. So वहाँ ये जो challenge है, जो foundational skills है before you are actually going into the formal school education system, उसको strengthen करने के लिए आंगनवाड़ी is important role play कर सकती है, and that is where this even curriculum comes into the picture, जहाँ पे proper standards या क्या pedagogy follow की जानी चाहिए वो सब clearly mentioned है. So there is this one standard जो जिसपे आंगनवाड़ीज work कर सकते हैं. So its components, like it includes a weekly play calendar is there. 36 weeks are spent on exploring free play, conversations, creation and appreciation, reflection. So all these areas are part of it. So there are close to 14 lakh Anganwadis in India, which are serving in villages in terms of health and nutrition also, and even in terms of the health of the pregnant mothers and even again children. तो चाहे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात हो, रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात हो, एंड देन चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे दे आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रोल. अगेन दिस इज अबाउट द सेम थिंग जो अभी हमने बात करी, एडेड शुगर इन द बेबी फूड्स. सो देयर इज इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, तो आप इसके बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हो. सो ओबेसिटी एंड डायबिटीज रिस्क जो है और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इफ the practice continues and the standards or there are no like strict actions taken against the food processing in the private industries. So type 2 diabetes, we are seeing even the type 2 diabetes, the people suffering and diagnosed with this is increasing. Specifically, we are seeing the numbers going up in the younger population. So 51 children, young adults with type 2 diabetes was discovered according to this data. तो टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, एक जो इसके बीच में डिफरेंस है औशक आप उसको मेंशन कर दो. टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 इट इज जेनेटिकली. क्या और टाइप 2 डिराइव्ड होता है लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ. बट यहाँ तो टाइप 2 लिखा है, तो टाइप 2 जेनेटिक आप बोल रहे हो. टाइप 1 जेनेटिक होता है. टाइप 2 इट इज in the later life when this insulin production get reduced a lot. लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड बोल सकते हैं. राइट. टाइप सो 1 जेनेटिक है. हाँ, डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बात की है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो टर्म मेंशन्ड है, हाइपर इंसुलिनमिया. So this is the constant exposure to simple sugars places an additional burden on the pancreas to produce insulin. तो मतलब the body requirement for insulin increases, and you have clearly mentioned a pancreas it secretes insulin and it releases that into our body. So इसकी वजह से it leads to exhaustion, because जितना ज्यादा शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो बॉडी को उतना ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट अगेन उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. तो इसमें बोल सकते हैं प्रॉब्लम क्या है ओवरऑल बेबी फूड इंडस्ट्री में. 3 प्रॉब्लम है. फर्स्ट है कि वो एक तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्रीज. अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग कंट्रीज के लिए. जहाँ पर रेगुलेशन क्या है वहाँ पर तो शुगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे लाइक इंडिया में. दूसरा कि
दे आर प्रमोटिंग शुगर बेस्ड ऑन देयर ब्रांड वैल्यू, लिख करके कि इट इज हेल्दी फॉर द बेबी, और इंडोर्सिंग अनहेल्दी प्रोडक्ट क्लेम्स, और वो बोलते हैं कि इन्फेंट फॉर्मूला इज हेल्दियर देन ब्रेस्ट मिल्क। तो ये सब एक तरह से हेल्थ वॉशिंग हो गया, कोट एंड कोट, कि आप बेकार के प्रोडक्ट को आप हेल्थ कोटेशन के अंदर में आप बेच रहे हो। हाँ, तो इसकी वजह से और जो रिस्क है, अर्ली ऑर्गन डैमेज इन adolescence and early adulthood, that can increase, and celebrities endorsing these unhealthy products, that is one area that needs to be regulated, because आप उसको endorse कर रहे हो तो कहीं ना कहीं accountability आती है। You can't be just be doing that, the only purpose cannot be earning money in this case. Even जो social media influencers है, they also come into this network, and it amplifies the threat of obesity, diabetes, and heart diseases. कैसे इसको रोक सकते हैं? तो पहली बात है, फूड इंस्पेक्टर के रूल्स में आता है, एफएसआई को ज़्यादा से ज़्यादा मैंडेट देना चाहिए कि वो एक्शन ले सके। तीसरा कि रोल ऑफ द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, जैसे फूड फार्मा इन इंस्टाग्राम, तो वो एक हाईलाइट करते हैं अलग अलग एरियाज में जहाँ पर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, हाई फैट, ट्रांस फैट, हाई सॉल्ट इंटेक एक्सेट्रा। तो उसके कारण एक एक दबाव पड़ता है ऑन द फ्रॉम द पब्लिक टू ऑन द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस कंपनी, तो एक्ट कर सकता है। और दूसरा, इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 थ्रू यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ, और इसका काम यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करे टू रिड्यूस इन्फेंट चाइल्ड मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, ब्रेस्ट फीडिंग और सपोर्ट कर Okay. कंट्री। Forest a national asset and major contributor to financial wealth. This has been highlighted by Supreme Court. So national asset, definitely when talking about sustainable development, so in that sense, forest are national asset and contributor to financial wealth में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ, उस कॉन्टेक्स्ट में दे आर इम्पोर्टेंट। ह्यूमन हेल्थ, अगर वी सी कि देयर वुड बी लेस बर्डन ऑफ डिजीजेस, तो हेल्दी वर्क फोर्स, इन that is one, we can say, one connection between the financial wealth and the forest. Apart from this, जो minor forest produce है, how sustainability they are being used, and agroforestry की फिर हम बात कर सकते हैं different areas, जैसे agriculture sector में भी हम agroforestry promotion की बात कर रहे हैं, and mitigating the impacts of climate change, so there it can help. एंड इकोनॉमी की जो फंक्शन है, जैसे आरबीआई ने रिसेंटली हाईलाइट किया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का या चेंजिंग पैटर्न ऑफ रेनफॉल्स का, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इवन इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो चीजें इंटर रिलेटेड है। एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, यहाँ पे वी आर सीइंग मेजरली उसके क्रिटिसिज्म्स हाईलाइटेड है, तो वी कैन लुक इनटू और क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। These can also be asked in the examination. तो criticism के context में it is saying कि ये commercialization को और ज्यादा promote करेंगे, commercial exploitation of forest, जैसे हम बात करते हैं कि construction of resorts in the forest land या giving the forest area to a private person. तो ये यहाँ पे we are seeing कि there is dilution in these provisions. So states को power दी जा रही है to regularize encroachments in the protected forest and determine the diversions of the forest lands. So this is there, and बाकी जो कार्बन क्रेडिट या ग्रीन अकाउंटिंग की हम बात करते हैं, ग्रीन जीडीपी की हम बात करते हैं, और टॉकिंग अबाउट क्रिएशन मोर ग्रीन जॉब्स, सो दीज थिंग्स आर देयर। एंड कार्बन क्रेडिट पॉलिसी जो है, द पावर लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वन इम्पॉर्टेंट मेजर थिंग की जो बेनिफिट की बात करते हैं, फॉरेस्ट नेशनल एसेट्स, सो कार्बन सिंक context में we can say, so forests serve as a major sink of carbon dioxide in terms of data. So the value of mitigation has put a conservative $5 per ton of carbon dioxide which is logged in the forest. So challenges, we are seeing increased forest fires because of, again, dry conditions, and underground जो forest fires होती हैं because of that. So
As per this report, India's forest and tree cover contribution as a carbon sink. This report says that between 1995 and 2005, the carbon stock stored in a forest and trees have increased from 6,200 million tons to 6,600 million tons. So increase हुआ है between 1995 and 2005 की बात हो रही है. So in this decade, एंड इकोनॉमिक जीडीपी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा. अगर मोर कार्बन वुड बी रिलीज फ्रॉम the forest, India could lose anywhere between 3% to 10% of the GDP annually by the year 2100 due to climate change and serious job losses, and definitely food security के ऊपर भी कहीं ना कहीं impact होगा. Ecosystem services जो provisioning services हैं, and जो biodiversity loss है, and land degradation can also increase because of this. So there are multiple areas. So यहाँ लव जिहाद की बात हो रही है, and we are seeing कि different courts are having different interpretations about this. So ultimately जो aim होना चाहिए that should be कि जो minority rights हैं, they should be protected. So for example, जैसे UP's prohibition of unlawful conversion of religion act 2021 is there. So here this act criminalizes such types of relationship. तो इसमें ये देखा जाता है कि these interfaith couple, like mostly we are seeing कि जो women होती है, they are from different religion and they are forced to convert to Islam. So that is why it is called love jihad, and there is no proper definition of this term also even in any law. Love jihad is coined by the media. It is not in the law, it is not in the jurisdiction, it is not used anywhere in the Yes. official document. Habibi. So arbitrary interpretations यहाँ पे highlight किया जाए तो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे लॉ की बात करें या फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात करें या स्टांस ऑफ जुडिशरी ऑन दिस इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में. सो इनकमिंग गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे विश लिस्ट की बात की जा रही है. तो व्हाट ऑल एरियाज कैन बी देयर, यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए हैं वो है इंक्रीज स्पेंडिंग. वी आर ऑलरेडी सीइंग कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, वो हमने इन डिटेल बात करी. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो अमाउंट और जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी एलोकेशन है दैट नीड्स टू गो अप. वी रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट दिस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दैट वाज formed. So we are seeing here private sector is also expected to contribute rupees 36,000 crores over 5 years. This they're promoting the STEM sector, science and technology, space sector. We are seeing 100% FDI has been allowed in component manufacturing. Focus on the merit. So in merit, we are talking about how education sector की बात करें तो in terms of like the admission process, that needs to be on the basis of purely merit and we can say competitive skills. So hiring in educational research institutions to a globally accepted standards. यहाँ पे we can also talk about the national education policy where we are seeing even foreign universities, they have started opening up or setting up their campuses in India. So global norms and global standards को how we can achieve that level. और जो हम top 100 या top 500 rankings की बात कर रहे हैं, more Indian institutes can be a part of it. Ensure freedom. जब हम like freedom, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, चाहे वो मीडिया की बात हो या अकेडमिया की बात हो, सो वो सब एरिया. राइट टू डिसेंट एंड उन सब की हम यहाँ बात कर सकते हैं. इंडिया टू एस्पायर टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050. Ease of doing science and provide scientists the complete freedom to think and implement. So there should be least amount of governmental interference in these areas. Meet the woman guarding a Serbian village under threat from a mine. So this is the name of the village, the coal mine, and the Krivelji village. और कोई अगर location है exact. China's Zijing mining area. Copper mines. From the ethics perspective, we can say that she showcased integrity, a fortitude, in spite of such pressure from the big companies. Yes.
स्टोरी ऑफ वन सिटीजन वन वोट तो